Hello everyone, welcome to your PDA and this is Shobhya. So this video is for all the ones who are preparing for Airport Authority. Now you see, it's going to be a very hard task if you're planning to remember all the words of vocabulary in a single go. It's quite impractical and also it's going to be a very hard one. Now what you need to do is, you need to have a regular dose of the vocabulary. From where you can get us to the Jhatpat sessions of vocabulary which we have drafted for you. The reason behind these sessions is that these sessions, in every session, it would be a very short session. Suppose it's for 15 minutes. Through that, you are going to remember more than 10 words for sure. And through a very interesting pattern, that is through pictorial representation, by making a story, I'll be helping you out so that by the end of the session, you are very sure that yes, I remember all the words related to this particular domain. Also, one more thing. The previous session of mine, which was related to this Jhatpat sessions of vocabulary, that was related to food habits of a person. From that domain, the scrumptious, that was the word which was asked in the PYQs, right? So I hope you remember the word scrumptious, and if not, you need to watch the video again. Now let's get started, where in this session of mine, I will be talking about the personality types of the person. By just merely looking at the pictures, you can get an analysis of it. We can get a little bit of draft in our mind that yes, what this picture actually denotes. And I tell you, sometimes you just remember a word, like you just need to take an extensive reading. You just need to get the documentation first. Very important thing, get this documentation. This documentation is available on your PDF panel and also on the Telegram channel. Get the documentation, plus try to practice the exercise which will be given at the end of this video. I'll be solving a bit with you to give you a kind of a simulation how the questions can pop up in your paper. The most important thing is, whenever you're practicing the questions, these things go to your subconscious. So whenever you're actually solving the paper, it would be helping you a lot in getting the right answer in your mind at that very moment. Trust me, it's going to be very interesting, but yes, it requires your immense patience and regularity and also the exact concentration. So do not start scrolling, or you can say anything else when you're just devoting yourself complete 15 minutes for this video. Now let's get started. The very first is, we are going to talk about different personality types. This person, this is stingy. Stingy is the person, like something, we remember the sting, like someone who smells bad. At least you know that it has a negative connotation, that is, it is going to have a negative meaning. Stingy matlab kuch ganda hai. But here it is associated with the person who does not spend a lot, जो पैसा नहीं खर्चता है. That is, जो person miser आ जाता है. Miser आ गया, stingy आ गया, एक category आ गई. इसका opposite क्या आ गया? जो बहुत खर्चीला है. Spend, thrift is a word which is opposite of it, right? So stingy we did the first word, and that is, you need to remember, जो अपने बटुए को ऐसे पकड़ के खड़ा है, वॉलेट को ऐसे पकड़ के खड़ा है, नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा किसी चीज के लिए. So who is unwilling to spend the money. Second we have is pedantic. Pedantic होता है एक रियल लाइफ में, अगर मैं बोलूँ, एक्सपोज आई वेयरिंग अ पेंडेंट, अ वेरी हैवी गोल्ड पेंडेंट, एंड ट्राई टू शो ऑफ एवरी टाइम. उससे याद करो, पेंडेंटिक है तो पर्सन पेंडेंट डाल के घूम रहा है और वो बार बार शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है. तो व्हाट इज इट? इट इज अ काइंड ऑफ अ शो ऑफ वेयर यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि जो सपोज यू आर ट्राइंग टू फिगर, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ बट इन रियल आई डोंट नो एनीथिंग. अ पर्सन हु स्टार्ट्स आस्किंग वेरी unnecessary questions by focusing on very minor details, कि अपनी presence को showcase करना, चाहे उसको कुछ भी ना पता उस चीज के बारे में, that is termed as pedantic personality. Pedantic is excessively concerned about little details, और who is the extreme show off. कोई बार दिखाते हैं कि बहुत पढ़ाकू है पर एक्चुअल में वो पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं होता है. This was a second word. Sanguine. Sanguine याद कर लो, sang मतलब वो गाने गा रही है, मतलब गाने गा रही है तो बहुत खुश है. तो खुश का हैप्पी वर्ड आ गया, शी इज वेरी हैप्पी, तो दैट इज समवन हु हैज हैविंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर. समवन हु इज वेरी चीयरफुल, समवन हु इज वेरी हैप्पी, दैट इज सैंग्विन. अभी 3 वर्ड्स कर लिए हमने, दोबारा करते हैं. स्टिंगी, जो बहुत ज्यादा कंजूस आता है, माइजर आता है, ऑपोजिट था स्पेंडथ्रिफ्ट. पेडेंटिक, जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, पेंडेंट डाल के घूमता है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है पर एक्चुअल में उसके पास कुछ भी नहीं है. देन इज सैंग्विन. सैंग्विन आ गया, जो हमेशा गाता रहता है, बहुत आपको हैप्पीनेस, खुशी, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी है, चीयरफुल पर्सनालिटी है. एंड आई होप यू आर सैंग्विन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट? अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. दिस इज एन ईडियम ऑल्सो. हॉटी एंड नॉटी एक ईडियम भी होता है, बट अभी हम हॉटी पे करते हैं. अब ये इधर साइड पे मुंह बना के खड़ी है, मतलब शी इज वेरी एरोगेंट, बड़े अपने आप को सुपीरियर समझना. तो हॉटी मीन्स समवन हु इज वेरी एरोगेंट, वेरी इगोइस्टिक, जिसको यू कैन से
who consider himself as a superior, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो that is your haughty personality. Impassive, impassive होता है जैसे पैसिव है किसी भी चीज को लेकर, मतलब कुछ भी इमोशन नहीं दिखाता है. ए स्ट्रेट फेस, अ लॉन्ग फेस, अ ब्लैंक फेस, मतलब एक इमोशनलेस पर्सनालिटी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी चल रहा है दुनिया में. आई एम वेरी इम्पेसिव, दैट इज आई डोंट कंसर्न अबाउट एनीथिंग, दैट इज इम्पेसिव. हमने किया ना, एक्टिव होता है एक फॉर्म और एक होता है पैसिव फॉर्म होता है, राइट. तो एक्टिव होता है जो उसमें इंग्रेन्ड है, पैसिव जो बड़ा न्यूट्रल है, उसको कोई इमोशन शो नहीं करता है. थर्ड इज गैरुलस. गैरुलस पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, दैट इज अगर आप बोलते हैं लोकेशियस वर्ड आता है, टॉकेटिव वर्ड आता है, वो आता है गर्राना से याद कर लो, जो गर्राता रहता है बार बार बिना किसी बात के, दैट इज गैरुलस. 6 वर्ड्स डन. लेट्स रिवाइज वंस अगेन द पिक्चर्स थ्रू द पिक्चर्स. अभी और मैं अच्छे से आपको डिटेलिंग दूंगी पिक्चर्स की, पहले एक बार इसको थोड़ा रिमेंबर कर लो. स्टिंगी जो कंजूस है, देन इज हॉटी जो एरोगेंट है, इम्पेसिव जिसको कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है, देन इज पेडेंटिक हु इज अ कंप्लीट शो ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन वेरी माइनर डिटेल्स, सैंग्विन हु इज चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, एंड गैरुलस हु इज वेरी टॉकेटिव, राइट. ये थे 6 वर्ड्स पहले. लेट्स गो विद द नेक्स्ट 3 फर्स्ट. गलिबल. गलिबल वर्ड याद कर लो. गल मतलब जो बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है. गल इज इन पंजाबी बात ओनली, राइट. सो जो बातों में जल्दी आ जाता है, गलिबल हो जाता है, मतलब मैं उसको बड़ी जल्दी से फुलिश बना सकती हूँ, मैं उसको बड़ी जल्दी से चीट कर सकती हूँ, मैं उसको अपनी बातों में ला सकती हूँ. अब ये है, ये बेचारी भोली भाली है, तो जिसको मैं जल्दी से फुलिश बना दूंगी अपनी बातों में लाके, दैट इज टर्म्ड एज गलिबल. मतलब मैं अपनी गल्ला चले आई नो, दैट इज गलिबल. देन इज इंडोलेंट. इनसाइड मतलब इन से याद कर लो, इन मतलब अंदर. अब आप लोग अंदर बैठे हो घर के सपोज, तो आप बड़े आराम से बैठे हो, राइट. यू आर वेयरिंग योर नाइट सूट्स एंड यू आर सिटिंग वेरी रिलैक्स्ड इन अ वेरी रिलैक्स पोस्चर, तो इसे बोलते हैं इंडोलेंट. दैट इज व्हेन यू आर वेरी लेजी एंड यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, राइट. कोई काम नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो. अभी तो फिर पढ़ रहे होगे, सो दैट इज इंडोलेंट. थर्ड आ जाता है फास्टिडियस, नखरे वाला पर्सन. फास्टिडियस, बड़ी फास्टली ये चेंज हो जाता है, मतलब जिसको इंप्रेस करना बहुत टफ टास्क है, दैट इज टर्म्ड एज फास्टिडियस. क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों पे हर चीज में नखरे दिखाता है या हर चीज की डिटेलिंग करता है, एक्यूरेसी मांगता है, दैट इज टर्म्ड एज फास्टिडियस. अब तुम्हें लगेगा कि मैम इम्पेसिव और फास्टिडियस सेम है. नहीं, इसे खुश करना डिफिकल्ट है और इम्पेसिव तो इमोशंस ही नहीं दिखाता है हमें, तो ये दोनों ही 6 के 6 आपके डिफरेंट आ जाते हैं. और ये भी अगर कंफ्यूजन है, पेडेंटिक, पेडेंटिक तो दिखावा करता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है. तो ये हो गए हमारे 9 वर्ड्स. एक ब्रीफ में 3 और वर्ड्स करते हैं. फ्लैम्बॉयंट. फ्लैम्बॉयंट होता है जब आप चीज को, एक होता है ना बहुत ज्यादा चमकीला, एक होता है जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि एक्सेसिवली कुछ ब्राइट, कुछ हमने दिखाना है, राइट. लाउड है कुछ बहुत ज्यादा, दैट इज टर्म्ड एज फ्लैम्बॉयंट. देन इट इज इंडस्ट्रियस. मैंने एक दिन इंडस्ट्री बिल्ड करनी है तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चीज के लिए, तो इंडस्ट्रियस मीन्स हु इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करता है. एंड देन इज टेनेशियस. हमें लगे रहना है, रोज हमें वर्ड्स याद करने हैं, चाहे 10-10, 15-15, 20-20, जितने भी वर्ड्स आई विल बी मेकिंग यू लर्न इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. तो टेनेशियस, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए मुझे, तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वोकैबुलरी की. इंग्लिश में मुझे 20 में से 20 लेने हैं, तो मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तो दैट इज परसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना, दैट इज टेनेशियस. अब ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट ये थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं. अब मैं इसको बहुत अच्छे से आपको फ्रेमिंग करके बताती हूँ. जब आप इसको PDF को डाउनलोड करोगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल द मीनिंग्स इन शॉर्ट, right? Stingy, unwilling to spend money. I've written it in a brief and it will be very easy for you to remember. Pedantic, who is just concerned about minor details. Bookish in a dull way, that is he's not having knowledge but is just trying to show off. हमेशा याद रखना words के meaning को समझो, because when you have 4 options they can change the wording of the option and at that time you can be confused. मैम ने ये क्या बताया था और क्या आ गया, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ मीनिंग्स ऑफ एवरी वोकैबुलरी, कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव. एक तो बिल्कुल डिक्शनरी वाला मीनिंग आ जाता है डेनोटेटिव. कॉनोटेटिव सोसाइटल है तो किसी का कहना डिफरेंट हो सकता है. कोई पर्सन कॉन्फिडेंट बोल सकता है सैंग्विन को, कोई पर्सन इसको ऑप्टिमिस्टिक बोल सकता है, कोई हैप्पी बोल सकता है, चीयरफुल बोल सकता है. लेकिन जब तुम्हें ऑप्शंस आएंगे तो पता चलेगा पॉजिटिव वर्ड को मैंने सैंग्विन में लेना है. ये तुम्हारी इतनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए. सो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल. हॉटी आ जाता है जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है. इम्प्रेसिव जो इमोशंस शो नहीं करता है. गैरलेस जो गर्राता है, एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलता है. गलिबल जो गलना चाह जाता है, इजिली फूल्ड हो जाता है. इंडोलेंट अंदर जो है लेजी बैठा है, कोई काम नहीं करना चाहता. फास्टिडियस फास्टली बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत हार्ड है इंप्रेस करने के लिए. देन इज फ्लैम्बॉयंट जो फ्लैशी है, जैसे अगर मैं दिखावा करूं, अभी आ जाऊं मैं और मैं बहुत ज़्यादा
एक लॉन्ग गोल्ड का सेट डाल के, गोल्ड की चूड़ियाँ डाल के, और हैविंग अ वेरी यू कैन से शो ऑफ करूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो दैट इज टर्म्ड एज फ्लैम्बॉयंट. एंड समटाइम्स इट इज़ लाइक कि अगर मैं इफ आई ट्राई टू स्पीक इन द ओरिजिनल मैनर, that is through the linguistics, so the people say that I am trying to show off the, you can say, the linguistics of myself, but that is not the domain. जब आप बोलते जाते हैं वैसे, so that is the flamboyancy, that is sometimes it is artificial, that comes naturally, क्योंकि आप बोलते वो एक ही वर्ड को कितनी बार लिंग्विस्टिकली प्रैक्टिस करोगे, तो दैट कम्स एज एन इम्प्रेशन. तो दैट इज करेक्टर के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, दोनों चीज़ों में जज किया जाता है. इंडस्ट्रियस जो बहुत मेहनत करता है. हिलेरियस, हाँ जी जी, हंसी मजाक करने वाला, दैट इज टर्म्ड एज हिलेरियस. ये थे हमने डिफरेंट वर्ड्स जो 12 वर्ड्स पढ़े हैं, 12-13 वर्ड्स. अब स्टिंगी को याद कर लो. अब ये देखना, ध्यान से देखना, स्टिंगी याद आना चाहिए जब कोई पर्सन है बड़ा बुरा मुंह बना के बैठा है और अपने बटुए को बिल्कुल साथ बैठा है. ही वॉज टू स्टिंगी टू गिव एनी मनी टू चैरिटी. वो नहीं देना चाहता पैसा, वो बहुत कंजूस है. मैंने इसका ऑपोजिट भी कराया है, स्पेंडथ्रिफ्ट. सिमिलर मीनिंग, माइजर. पेडेंटिक, रुड़वादी. रुड़वादी क्या होता है? द पेडेंटिक टीचर इंसिस्टेड इन एक्सप्लेनिंग एवरी डिटेल. मतलब वो दिखाना चाहती थी यार मैं छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगी, मैं थोड़ा आर्टिफिशियली दिखाऊंगी. मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू एंड डल वे, मतलब छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो आनी भी नहीं पेपर में, वो पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ. तो स्टिंगी, कंजूस, पेडेंटिक, दैट इज रुड़वादी. नेक्स्ट इज सैंग्विन, आशावरी. मतलब आशा है, होप है, पॉजिटिव है, तो दैट इज सैंग्विन. हॉटी, अभिमानपूर्ण, जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, अभिमान है, आप बोल सकते हैं, या फिर हु इज़ वेरी एरोगेंट, इगोइस्टिक, ये आ जाता है. स्नॉबिश, दैट इज टर्म्ड एज हॉटी. कुछ कुछ सिनोनिम साथ साथ में करते रहो, जैसे ही हैज़ अ सैंग्विन एटीट्यूड, शी गेव हिम अ हॉटी लुक, बड़ी बुरी लुक दी है उसको. इम्पेसिव, दैट इज टर्म्ड एज भाव शून्य. इसके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई भाव नहीं है. ही रिमेन्ड इम्पेसिव एज द आर्ग्यूमेंट एस्केलेटेड. जितनी जितनी लड़ाई बढ़ती गई उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ब्लैंक खड़ा रहा, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिए. तो भाव शून्य, भाव जीरो. देन इज गैरलस, बात तो नहीं है, बहुत बोलता है. He is quite garrulous talking to anyone who will listen him. Then is gullible, जो बहुत ज़्यादा भोला है, किसी की भी बातों में आ जाता है. She is gullible, that she will believe anything you will tell her. Indolent, कितने लोगों की शक्ल मैच कर रही है इससे इस टाइम पे, तो दैट इज पर्सन हु इज एक्सट्रीमली लेजी, जो कुछ नहीं करना चाहता. सो शी बिकेम इंडोलेंट एंड स्पेंड ऑल डे इन द बेड. फास्टिडियस, दैट इज, आप बोल सकते हो किसी चीज़ को जब आप बहुत मेटिकुलस हैं, बहुत डिमांडिंग हैं, दुराराध्य हैं, दैट इज समथिंग जब आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू इम्प्रेस, दैट इज टर्म्ड एज अ फास्टिडियस वन. फ्लैम्बॉयंट आ जाता है भड़कीली चीज़ें, जैसे दिखावा करना, असेंचुएट करना. मैंने अभी बोला मैं गोल्ड डाल के आ जाऊंगी, भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गोल्ड है, तो मैं क्या कर रही हूँ, दिखावा कर रही हूँ. तो दैट इज फ्लैम्बॉयंट, दैट इज टर्म्ड एज, आप किसी भी वे में, अपीयरेंस के वे में, बिहेवियर की वे में आप फ्लैम्बॉयंट हो सकते हैं जब आप एक्स्ट्रावेजेंस, ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, जबकि आपके पास इतना नहीं भी हो या हो भी, राइट. तो शो ही है कोई पर्सन. इंडस्ट्रियंस, जो बहुत परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है, शी इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट. आप लोग को इंडस्ट्रियस होना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना है. हिलेरियस, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, फनी, मजाकिया, दैट इज टर्म्ड एज हिलेरियस, राइट. हास्य कर आ जाता है, दिस मूवी वॉज वेरी हिलेरियस. तो ये थे कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको, आई होप ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा. It's going to be very interesting, but it all requires is your regularity, your patience, and don't forget to test yourself at the end of this video. जो भी हमने words किए हैं, I think कुछ easy words थे, ज़्यादा tough नहीं थे. जैसे a person who is reluctant to spend money and hard possessions is best described as. अब मतलब जो मनी स्पेंड करने के लिए रिलक्टेंट है, मतलब याद है एक चेहरा जो बहुत बुरा सा बना हुआ था और उसने ऐसे पकड़ा हुआ था अपने आप को, हाथों में वो बटुआ पकड़ा हुआ था और वो देना नहीं चाहता था, वॉलेट पकड़ा हुआ था. तो दैट इज, वो पर्सन कौन सा था, स्टिंगी था, माइजर था. यहाँ पे मुझे स्टिंगी दिख रहा है. अगर मेरे को करना है इसको सॉल्व थ्रू द एलिमिनेशन मेथड, अ पर्सन हु एक्ट्स एरोगेंटली एंड लुक्स डाउन ऑन अदर्स. कैसी पर्सनालिटी, मतलब बड़ा एरोगेंट है. मेरे माइंड में वर्ड आ चुका है लेकिन मुझे सपोज उस टाइम पे नहीं याद आ रहा. तो दूसरा मेथड क्या है, टेनिशियस, ये तो भाई हार्ड वर्किंग था. 10 on 10 लेना है तो भाई मुझे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा. गलिबल है, बातों में आ जाना, बातों में आ रही हो तो ये तो मैच नहीं कर रहा है उससे. हॉटी, हाँ उस हॉटी मतलब एरोगेंट. इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, तो मुझे तो लग रहा है हॉटी होगा, दैट इज सी ऑप्शन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल बी सॉल्विंग 2 to 3 फॉर यू, सो दैट आपका मेन वर्क आता है कि आप खुद भी जाके सॉल्व करें. अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, मतलब बहुत बोल रहा है तो इंडोलेंट, तो भाई वो तो शांत, कुछ भी नहीं करना चाहता होता. गैरलस है वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लॉजेस्ट सिनोनिम ऑफ हिलेरियस.
अच्छा, हिलेरियस का सिनोनिम कौन सा है? अब ये मैंने नहीं बताया इनमें से, बट ऑप्शन डिटेक्ट कर सकते हैं आप। मेलंकली होता है किसके लिए? सैडनेस के लिए। कॉमिकल होता है हैप्पीनेस के लिए। अपैथेटिक होता है जिससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, अपैथी है। एरोगेंट जो थोड़ा घमंडी आ जाता है। द नियरेस्ट ऑप्शन दैट मैचेस इज बी ऑप्शन, कॉमिकल। इसको स्क्रीन को पॉज करके या डाउनलोड करके डॉक्यूमेंटेशन को, वर्ड्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैं एक और कर देती हूँ आपके लिए। जो चेयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, कौन सा था वो? मुझे तो लग रहा है फास्टिडियस नहीं, सैंग्विन, एम्पेसिव, गैरुलस। सैंग्विन होना चाहिए। कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है जो लेजी है और काम को अवॉइड करता है? इंडस्ट्रियस तो मेहनती था। इम्पेसिव है, हो सकता है, पर इम्पेसिव तो हमने कोई इतना वो नहीं पढ़ा था। इसमें इंडोलेंट जो नहीं है, फास्टिडियस जिसको खुश करना, तो आई थिंक इंडोलेंट इज द इजी वन। और जब भी आप क्वेश्चंस को, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब भी आप याद रखना क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उन चारों ऑप्शंस को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना, बिकॉज एक क्वेश्चन से आपके मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट ऑप्शंस या उसी ऑप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड दैट हैज़ व्हाट एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज़ डन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप देखना चाहें प्रीवियस ईयर्स को देखना, उसमें जो एक ईयर में आपके ऑप्शन था वो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन बन चुका था। तो दैट्स अ स्मार्ट वर्क विच दे डू, एंड इट्स योर स्मार्ट वर्क टू practice more. I hope you like the session, and very soon I will be coming with the next session of different words, and this is a Jhatpat session of vocabulary. I hope you find it interesting, and through pictorial representations you are able to remember the words very easily. I asked you a PYQ at the very start of the video, and that was, what is the meaning of the word scrumptious? Pop up in the comment section so that you can analyze yourself कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी पिछली वाली या नहीं की थी. So all the best, take care and have a good day.